I would want you guys to participate as much as you can. This is the last session, and this is more about tech. We will try speaking less of tech and more of real life situations. So with that, let's get started. So हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ही तेज़ी से बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से अडॉप्शंस आ रहे हैं. वी स्पीक अबाउट UPI 3.0, we speak about newer and newer advancements. Now with that, we are also talking about digital age, we are talking about digital lending. And with all of this, there is a lot of pressure on tech. But at the same time, there is also pressure on our technology to be safe. Can I trust it? Can I use it? So in today's session, where we are going to talk about tech, we are going to talk about cyber attacks and cyber security. We are also going to touch base on this big buzzword of AI, the artificial intelligence of everything. How many of you use WhatsApp, by the way? So with WhatsApp, there is a lot of AI into it already. In your banks, you're using AI. We heard about FinTech, which was speaking about AI. So with that, let's get started. And I'm going to invite Talib ji, in order to kickstart the session, I want you to help us understand the challenges that you face today. And what are those challenges that you have been seeing with regard to security, tech, and... Madam, I will speak in my mother tongue, if you don't mind. Absolutely. ગુજરાતી ફાવે ને આપણે? ઇંગ્લિશ તો રાતે જ ફાવે. હવે બધા આઈટી એક્સપર્ટ છે, હું આઈટી એક્સપર્ટ નથી. મારે ખાલી પ્રોબ્લેમ જ કહેવાના છે કે બેંકના ડાયરેક્ટર તરીકે આપણે શું પ્રોબ્લેમ ફેસ કરીએ છીએ. એ લોકો બધી મોટી સુફિયાની વાતો કરે જ છે બધા, પણ વી હેવ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ પ્રોબ્લેમ્સ. હવે આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સી, ડેટા એનાલિસ્ટિક, સાયબર સિક્યુરિટી, આ લોન આપવા કરતાં આ વિષય પર હવે આપણે વધારે કામ કરવું પડે છે. અત્યારે બેંકની પરિસ્થિતિ એવી છે કે લોન આપવા કરતાં આ બધા વિષય પર વધારે કામ કરવું પડે છે. હવે હજી તો ML, મશીન લર્નિંગ ને બધું કંઈક રોજ નવું કંઈક આવે છે. પણ પ્રોબ્લેમ જે નાની બેંક છે, અમારા જેવી નાની બેંક છે, એ લોકો પાસે એટલો સુપર ક્લાસનો આઈટી સ્ટાફ નથી ને સ્ટાફ રાખવા માટે 6 ડિજિટની સેલેરી આપવા માટે અમારા પાસે પૈસા નથી. એટલે આ બધી લગભગ મારે બધા ડિરેક્ટરો સાથે વાત થતી જ હોય છે. આ કોમન પ્રોબ્લેમ છે, પણ અહીંથી બોલવાનું મારે કરવું પડે છે. શું કહો છો સાહેબ? હા, એ તો આવું છું સાહેબ, ડોન્ટ વરી. એટલે મેં મેડમને કીધેલું કે સૌથી છેલ્લા મને બોલવા દો. મને કે ના, તમે પહેલાં બોલો. હવે આપણે જે બધા પ્રોબ્લેમ ફેસ કરીએ છીએ, કમિશનર સાહેબે જે શરૂ કર્યું એમાં લગભગ 50% વસ્તુ એ કહી જ દીધેલી છે. બેંકને CBS સાથે બી પ્રોબ્લેમ છે, સ્વિચ પ્રોવાઈડર સાથે બી પ્રોબ્લેમ છે. એ લોકોના ત્યાં પ્રોબ્લેમ થાય છે ને વી આર સફરર. એઝ અ ડાયરેક્ટર, આઈ હેવ આન્સરેબલ ટુ રિઝર્વ બેંક, આન્સરેબલ ટુ રજિસ્ટ્રાર, આન્સરેબલ ટુ શેર હોલ્ડર એન્ડ કસ્ટમર. જે પ્રોબ્લેમ સાયબરના જે બી પ્રોબ્લેમ છે એ જે ડિજિટલ અમારા જે સપોર્ટરો છે, એસોસિએટ છે, એ લોકોના પ્રોબ્લેમ છે. બેન્કરોને આ બધું આવડતું નથી. ને સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે કે પેનલ્ટી લોકો બેંકને આપે છે. RBI કરે છે આ લોકો ભૂલ. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં અમારી બેંકે બહુ સહન કરેલું છે. અમે CBS બી ચેન્જ કર્યું. હું આના આગળના 2-3 પ્લેટફોર્મ પરથી આ વસ્તુ કહી ચૂકેલો છું કે CBS સાથે તમે જે બી MOU બનાવો, બહુ જ સ્ટ્રોંગ બનાવજો. અમે લોકોએ બહુ પેન ઉચકેલું છે આ જ્યારે અમે સ્વિચ ચેન્જ કર્યું ત્યારે. હમણાં અમે જે બી અમારા CBS પ્રોવાઈડર છે, અમે એમાં પેનલ્ટી ક્લોઝ નાખેલા છે કે તમે અમારી સર્વિસમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો તમારી જવાબદારી છે, તો તમારે એનું અમારે પેનલ્ટી આપવી પડશે. એટલે તમારે એઝ અ બેન્કર, એઝ અ સિનિયર, આઈ રિક્વેસ્ટ યુ કે તમે જેના બી સાથે MOU બનાવો ને
કારણ કે આ લોકો શું છે કે સાહેબ અમારું સ્ટાન્ડર્ડ MOU છે, પૈસા માંગે 25 લાખ 30 લાખ ને MOU સ્ટાન્ડર્ડ. એટલે એઝ અ બેન્કર કેલાવાલા સાહેબ અમારા લોકોને બહુ તકલીફ પડે છે. એટલે ને અમે નાના બેન્કર છીએ. કેલાવાલા સાહેબ તો બહુ મોટા માણસ છે, એના પાસે તો 20-22 માણસનો આઈટીનો સ્ટાફ છે. એટલે નાના બેન્કરોને કઈ રીતે પ્રોટેક્ટ કરી શકાય, કઈ રીતે સર્વિસ આપી શકાય ને એના માટે કોઈક એવું પ્લેટફોર્મ હોવું જોઈએ કે જે અમારા રાઇટને પ્રોટેક્ટ કરે. આ લોકો તો પ્રોફેશનલ છે, એ લોકોને પૈસા મળે છે. ડાયરેક્ટર તરીકે બધાને ખબર છે કે આપણે શું મળે છે યાર. એટલે સાहब मैडम बोलना ये है कि ये तो सब ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी है, चोरी होती है, इट इज़ एवरीवेयर. वो अमिताभ बच्चन जी भी बोल के थक गए कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए. उनको कोई नहीं सुनता तो हमारा कहाँ से कोई सुनेगा. तो ये सिचुएशन है. छोटी बैंकों को कैसा प्रोटेक्ट किया जाए, ये लोग सब बड़े जो IT के एक्सपर्ट्स हैं उनको थोड़ा हमारे लोगों को सर्विस देना चाहिए कि हमारे पास इतना टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है. हम समझते हैं लेकिन वी डोंट हैव टेक्निकल स्टाफ. प्लीज सर. And it's the most important concern that comes from smaller banks. अगर SOC एनालिस्ट ही नहीं है या सिक्योरिटी एनालिस्ट ही नहीं है तो वो आगे क्या देखेगा, और आप अपना बैंकिंग देखोगे कि साइबर सिक्योरिटी देखोगे. सो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड I feel AI has a lot of answers to it. Let's hear from Asif sir. What is your take? थैंक यू मैम. मैं सॉर्ट ऑफ स्टार्ट करूंगा जहां तालिब सर ने सॉर्ट ऑफ पॉज किया है. आई मीन इट्स लाइक अ स्टोरी. 3 पार्ट समझाता हूं मैं आपको, थोड़ी सी चीज़. जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था आज मॉर्निंग में, देयर वाज अ जेंटलमैन हियर. उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि बैंकिंग किससे स्टार्ट हुई थी. जब बैंकिंग स्टार्ट हुई थी तो उसके अंदर एक दिन पैसे जमा कराता, दूसरे दिन पासबुक में एंट्री होती, तीसरे दिन कुछ और होता. इट यूज टू टेक टाइम, इट यूज टू टेक स्टेप्स एंड डेज. बट देयर वाज दिस ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर. बैंकिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. ओके. अब आप ये सोचिए कि हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है अभी यहाँ पे, लेट्स से कि एवरेज एज हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स की 50 ईयर्स है. 50 ईयर्स की एवरेज एज है हमारे सब कोऑपरेटिव बैंक्स की. आज 50 साल हमको लग गए इस स्टेज पे पहुँचते पहुँचते जहाँ पे हम अभी भी स्टेबल नहीं हैं हमारे कोर सोल्यूशन से. वी आर स्टिल लुकिंग फॉर एनहेंसमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स. हमारे कोर सोल्यूशंस को इम्प्रूव करते करते हम 50 साल तो हमारे AI, ML, these are buzzwords right now. It is part of technology. मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का है. 30 years आई एम इन IT सेक्टर राइट. मेरा रहा है बैकग्राउंड. तो आई सपोर्ट कि न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी का चेंजेस आएंगे, ये आएगा. दैट इज़ अंडरस्टूड. नाउ लेट्स कम टू पार्ट 2. अगर आज आपने किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया देखा हो आज का एडिशन, उसके अंदर एक हेडलाइन थी. A headline was, Kerala has been declared the most digital literate state of India. This was the headline. Amazing. Kerala has been literate state before, now it is digital literate. 104-year आदमी का फोटो है उसमें, who is doing something online. ठीक है? Very nice. अगर आप उस आर्टिकल के मिड सेक्शन में जाएंगे तो there is a line over there that says, comparing to India's digital literacy. इंडियाज़ डिजिटल लिटरेसी का परसेंटेज कितना है आपको पता है? 38%. दिस इज़ द डिजिटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया राइट नाउ. 38%. यानी कि यू आर स्टिल लुकिंग एट 62% ऑफ पीपल हु आर नॉट डिजिटली लिटरेट. डिजिटल लिटरेट होने का मतलब ये नहीं कि आप SMS भेज सकते हो, कि व्हाट्सएप कर सकते हो. नो, इट इंक्लूड्स अदर थिंग्स. क्या आप बैंकिंग कर सकते हो, क्या आप शॉपिंग कर सकते हो, कैन यू बी ए गुड जज कि जो आपके सामने डिजिटल इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट इज़ राइट और रॉन्ग. इन चीज़ों के क्या आप जज बन सकते हो. सो इमेजिन इतनी पॉपुलेशन अभी भी डिजिटली इलिटरेट है इंडिया के अंदर. तो दैट इज अनदर पार्ट. नाउ लेट्स कम टू अ थर्ड पार्ट हियर. अगस्त के महीने में 2025 के अंदर RBI ने एक फ्रेमवर्क रिलीज किया है कॉल्ड फ्री AI. इट्स ए रिपोर्ट.
बाय आरबीआई। आरबीआई ने एक कमेटी बनाई 7-8 जनों की, इंटरेस्टिंग कमेटी एज वेल, वेरी इंटरेस्टिंग। इस कमेटी के अंदर आउट ऑफ 7 or 8 people, 4 or 5 are from IITs, NASSCOM and Ministry of Information. 3 other people, private sector से, one is from Trilegal, which is the largest legal firm in India, second one is from HDFC Bank, and third is from Microsoft. 3 other entities are in this committee जिन्होंने ये report बनाई है. So I was this is like sounded very interesting कि why these 3 people only? ये वो companies हैं who are trying to push their banking, their practices, their technology on our community, on our customers, on our banking industry. उस रिपोर्ट के मिड सेक्शन में अगर आप पढ़ेंगे, so they did a survey कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है AI का. So they took 600 banks, 10% has gone for anything related to AI. 90% are not even ready to invest in it. 90% of people are not even ready to go for it. Why? जो same problem तालिब सर ने बताई, they are still going through a learning phase with their current technology stack. तो AI तक जाना is a different story altogether. So ये 10% लोगों से पूछा गया कि आप किसके लिए AI यूज़ कर रहे हैं. उन्होंने कहा हम सेल्स मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस और इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं. सो अगेन कमिंग बैक टू द ओवरऑल क्वेश्चन, AI वंडरफुल थिंग. आज की तारीख में अगर आप किसी को पूछोगे ना कि AI क्या कर सकता है, तो सर एक फ़ोटो को डांस करा सकता है. एक फ़ोटो दे दो, उसको डांस करा के मीम बना के भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ये करता है AI. ये जवाब होता है. बैकग्राउंड के अंदर AI इज स्टिल इन अ वेरी 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 यंग एज एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर AI टू बी इम्प्लीमेंटेड एज ए solution, as a back-end solution for banking and for the other things as well. Thank you so much, sir. A very interesting perspective. I'll invite Sujit ji. What is your take, given that you come from tech? So, what is your take on AI and its role into this whole gamut of security and the urban cooperative banks that we are talking about? Because sir has thrown a fantastic number. Only 10% of adoption is present right now. So what value do you see, and what do you see, how can we grow further? एक्चुअली कोई भी चेंज होता है, सर ने जैसा बोला कि इट विल टेक टाइम. कोई भी चीज़ें ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है. पहले CBS नहीं था कोऑपरेटिव बैंक में, दे आर एडॉप्टिंग द CBS. अभी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं जो अभी मैनुअली कर रहे हैं, वो भी माइग्रेट हो रहे हैं. तो AI वैसे ही धीरे धीरे लोग एडॉप्ट करेंगे. अभी सेल्स मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए लोग AI यूज़ करते हैं. जब डेटा एनालिटिक्स की बात होगी तो वहाँ पे लोग AI यूज़ करेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम. तालिब सर ने बोला कि मैन पावर नहीं है. मैन पावर इज़ द मतलब कि बिगर प्रॉब्लम फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. लेकिन मेरा एक सुझाव है एज ए IT कंपनी कि बहुत सारे IT कंपनियां हैं जिनके साथ कोऑपरेटिव बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक काम करती है. वहाँ से वो चीज़ें ट्रेंड होके आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं. C2H जिसको मॉडल बोलते हैं, C2H पे बहुत सारे IT कंपनियां हैं, वहाँ से ट्रेन होके आ सकती हैं, लोअर पैकेज पे आ सकते हैं. तो इससे क्या होगा, फिनटेक कंपनियां भी ग्रो करेंगी पैरेलली, एंड देन कोऑपरेटिव बैंक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दे कैन ऑल्सो ग्रो, वो करेंगे. उसके बाद जो AI का इम्प्लीमेंटेशन है या जो डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी. जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, आपके पास टेक टीम नहीं होगी, तो ना तो AI के बारे में सोच सकते हैं, ना साइबर सिक्योरिटी सोच सकते हैं, ना डाटा एनालिसिस सोच सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो स्टेपिंग है कोई भी टेक्नोलॉजी का, वो होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. Perfect. In fact, I want to relate to something which Kamlesh Bhai said in the previous session, and Adil sir also mentioned. They were talking about 360 view of the customer. कि भाई वो कस्टमर की लाइफ हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है. दे वर टॉकिंग अबाउट कैमरेज को डिटेक्ट कर कैमरे के फीड्स को चेक करना एंड ऑल दैट. सी दिस इज ऑल्सो वेयर सो मच ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन. In the previous session, in the fintech session, we were speaking about data is the new oil. So अगर
इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है और उस डेटा में से अगर हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को अपने ही यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो क्यों नहीं. सो माई सी टेक्नोलॉजी कम्स विद लॉट ऑफ चैलेंजेस और जब लोग नहीं होते तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सो दैट्स द प्लेस वेयर AI is bringing in that automation. But as you rightly said, there is always a first step that is needed. Education is needed, security education. Plus जिस तरीके के cyber attacks हो रहे हैं, and as sir was highlighting, the new regulatory norms that are being formed. See, there is a clear gap. इतने सारे RBI के rules generate हो रहे हैं. Now, उन rules को हम कैसे apply करें? So my question to you, Rakesh ji, what is your take? First of all, I want you to break this whole cyber security framework into simple, understanding for our audience. Thank you, ma'am. As per RBI expectation, day by day RBI कुछ ना कुछ नया लेके आता है. I don't know whether you people have been gone through the RBI's website. अभी कल ही RBI ने 5 बैंकों को पेनल्टी लगाया हुआ है. जो 6 करोड़ की पेनल्टी लगी है टोटल. 5 को लगी है, कल की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द 9 सितंबर. द RBI हैज पेनलाइज्ड 5 बैंक yesterday, only yesterday. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि RBI ने बेसिक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2018 अक्टूबर में इश्यू किया था. फिर उसके बाद 19 में किया था. तो उसके बाद भी आज पूछ रहा है RBI इज आस्किंग कि भाई आप गैप ऑडिट के लिए जाओ. और क्या है कि भाई व्हाट इज द स्टेज. गैप ऑडिट करवाया तो उसमें क्या है, देर आर टोटल 83 पॉइंट्स आर देयर गैप ऑडिट में. तो कभी कभी क्या होता है कि 83 पॉइंट्स है तो उसमें से सो मेनी बैंक्स कंपाइल 50%, 30%, तो वो पूरा करना है. और दूसरा क्या है, बैंकों की पोजीशन क्या है कि बैंक में IT डिपार्टमेंट है लेकिन टॉप मैनेजमेंट पर जो बैठा है तो उसको व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी. अभी जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था इन द स्टार्टिंग कि हाउ मेनी पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप. तो कुछ IT के बंदे हैं जो अपने बैंक के नेटवर्क में व्हाट्सएप वेब स्टार्ट करके काम कर रहे हैं. तो दैट इज़ रिस्की. मतलब व्हाट आई मीन टू से दैट कि तरह तरह के नए गाइडलाइन आ रहे हैं RBI के, गैप ऑडिट करवाना है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एज ए बैंकर और टेक्निकल जो बंदा है तो उसको क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है. कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पता नहीं है क्या करना है, एग्जैक्ट व्हाट बैंक को क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है. और कभी कभी ये हो रहा है कि भाई VAPT ऑडिट हो गया, सिस्टम ऑडिट हो गया, रिपोर्ट आ गई है, कंप्लाइंस नहीं किया है. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. तो इसके What I mean to say कि जो भी आप ऑडिट के लिए जाओ, whether it may be the gap audit or it may be the VAPT audit or it may be the system audit, तो उसका एक within 1 month you go for the compliance. अगर compliance हो गया, और as a बैंक क्या है कि बैंक is the custodian of the customer data, तो उसको prevent करना है. और CBS के साथ है, फिर आए दिन नई चीज़ आती है, UPI आ गया, IMPS आ गया, RTGS आ गया, NEFT आ गया. पहले तो क्या था कि भाई पुरानी पीढ़ी के साथ कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे थे. अभी क्या है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ गई. तो वो क्या बोल रहे कि साहब हमने तो आंगड़ी ने टेरवे बैंक जो है, वी वांट बैंक ऑन आवर फिंगर टिप. तो सबका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है. तो उसके साथ कोई भी बैंक हो तो उसका IT डिपार्टमेंट है तो दे हैव टू कंप्लाई विद द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. तो वो अगर नहीं करता है तो RBI इज़ रेडी टू पेनलाइज द बैंक. तो आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज ऑल द बैंक कि आप जो भी साइबर सिक्योरिटी रिजर्व बैंक के जो भी गाइडलाइन है आप कंप्लाई करो. और अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टिन पर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओ, उसका भी गाइडलाइन आ रहा है, अलर्ट आ रहा है, एडवाइजरी आ रहा है, तो उसको कंपाइल करो. तो वो करेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसा आएगा कि वी विल स्टैंड समवेयर. अदरवाइज क्या है कि आप आगे बढ़, मतलब ऑडिट हो गया है आपका और उसमें जो डाउट्स है कि भाई जो भी नेग्लिजेंसी है तो वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर अगेन एंड अगेन दैट पॉइंट विल कम. तो देयर इज डजंट मीन, उसका कोई मतलब नहीं है. तो IT ऑडिट है, VAPT, उसके साथ कॉम्प्लायंस भी होना चाहिए. नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे होता है ना कि UPI ID क्या है, तो लोग बोलते हैं मेरा UPI ID ये है, पासवर्ड भी ये है, तो दे देते हैं. मतलब
कस्टमर को भी एजुकेट करना है कि भाई देर इज, अगर आपका पैसा आ रहा है, समबडी इज सेंडिंग मनी टू यू, देन यू नीड पैसा रिसीव करने के लिए नो नीड टू OTP. देन ऑल्सो पीपल आर शेयरिंग OTP. हमारे यहाँ एक ब्रांच में ऐसा हुआ था, वो ब्रांच में ऐसा हुआ था, किसी कस्टमर को फ़ोन आ गया, किसी ने वीडियो भेज दिया कि भाई बच्चा ICU में, वी नीड सम मनी, और उसको पता नहीं, और उसने 34,000 रुपये भेज दिया. फिर अगेन वेरी नेक्स्ट डे वी गॉट द कंप्लेन ऑन 1930. तो क्या है कि जो भी IT डिपार्टमेंट तो है, तो और उनको क्या है कि बैलेंस करके चलना है. कभी कभी क्या होता है कि भाई टॉप मैनेजमेंट को अंदाजा नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है. भाई गैप ऑडिट है तो वो बोले कि अभी दो साल पहले तो गैप ऑडिट करवाया था, बट इट इज़ नेसेसरी कि करना है. फिर बोलते हैं कि भाई अपन ने सिस्टम ऑडिट, वी हैव बीन टू सिस्टम ऑडिट इन 23. अगेन सिस्टम ऑडिट इज द गाइडलाइन, एवरी ईयर यू हैव टू गो फॉर दैट, एंड VAPT टू टाइम इन द इटरेशन फाइनेंशियल ईयर. तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसके साथ ये करेंगे, कदम मिलेंगे, देन एंड देन ओनली कोऑपरेटिव बैंक कैन स्टैंड. इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट. हम लोग भी कर रहे हैं, ये बैंक भी सभी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कदम मिला के चलना पड़ेगा, देन आप यू कैन सर्वाइव. अदरवाइज क्या है कि भाई हैकर्स और ये जो है दे आर रेडी टू अटैक. तो दिस इज माय व्यू. थैंक यू. A pretty fair view, sir. क्यों सॉरी, आई डोंट एग्री विथ यू कि टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता है. सी, वी आर बेसिकली फॉर सर्विस, कम्युनिटी को सर्विस देने के लिए बैंक में हम लोग डायरेक्टर बने हैं, बराबर है. वी हैव आवर ओन बिजनेस. और नंबर 2 कि हमारा बैंक है, मैं मेरी बैंक की बात करूँगा, 67 ईयर्स ओल्ड बैंक है. मेरे पास 28, 28, 22 साल पुराना स्टाफ है. वो लेजर से धीरे धीरे कंप्यूटर पे आया है, और कंप्यूटर से अभी AI में जा रहा है. हम स्टाफ को निकाल नहीं सकते हैं, और हमारे पास ऐसे इतने पैसे भी नहीं है. व्हाट यू से, हम समझते हैं कि हम स्लो है, लेकिन वी हैव नो चॉइस. इवन RBI से कि यू रनिंग विद द एक्सेस स्टाफ. अब जो स्टाफ है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते. ह्यूमैनिटी ग्राउंड समझो कि लीगल ग्राउंड समझो. तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं डिस्कस नहीं होता है. खाली साइबर सिक्योरिटी में फ्रॉड होता है, और फ्रॉड नहीं होने के लिए ये कंपनी ये सर्विस ले लो, वही बात होती है. उसके सिवा भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है. बैंकों को क्या कर सकते हैं. अभी आप बोल रहे हो IT का एक्सपर्ट में लेने जाओ तो उसे एटलीस्ट 1,25,000 to 1,50,000 पर मंथ चाहिए. आई कैन अफोर्ड. बैंक भी चलाना है ना सर. नहीं, बैंक चलाना है बराबर है, लेकिन नफे में मैं आपको आई वुड लाइक टू शेयर, नहीं चलाना. आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग. एक बैंक के चेयरमैन है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम. उनको एक क्वेरी आया था साइबर सिक्योरिटी में कि उनका जो फायरवॉल, आई थिंक ऑल नो व्हाट इज द फायरवॉल. तो उनका क्वेरी आया था ये ऑडिट में कि फायरवॉल शुड बी इन HA मोड. तो वो चेयरमैन लेवल पे ही वाज सेइंग, अरे यार अपने पास एक तो फायरवॉल है, क्यों नहीं है. फिर अगेन दूसरा second time they have been to gap audit. At that time gap auditor told them why your firewall is in not HA mode. Then they have implied. मतलब ये चीज़ें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करा, बट दे मतलब उनको समझ नहीं आ रहा, या तो वो समझते ही करना नहीं. दैट आई मीन टू से. तो मतलब ऐसा दिस सिनेरियो है. सर, अब मुझे ये बताइए, आपने बहुत वैलिड पॉइंट निकाला. छोटी बैंक है, बहुत साल पुरानी बैंक है, बड़ी मुश्किल से वो लोग लाइन प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स से मूव होकर हम लेज़र प्रिंटर्स पर आए हैं, हम कंप्यूटर सीखना सीखे हैं, और अब AI के ऊपर प्रेशर आ रहा है. ऊपर से RBI ने इतनी सारी गाइडलाइंस डाल दी हैं. लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी सर, ये अटैक्स हो रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं. ये एक छोटे बैंक से लेके एक बड़ी कॉरपोरेशन, सबको अटैक कर रहे हैं. हमारे WhatsApp अकाउंट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं. एंड हमारी जो बैंक्स हैं, जो स्पेशली जो छोटी बैंक्स हैं, जिनके पास में वो IT टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर उसमें एक भी अटैक हो जाए और उसका आपका कस्टमर का पूरा डेटा वाइप ऑफ हो जाए, तो आप सोचिए रातों रात आपकी बैंक बंद हो सकती है. दैट्स अ रियल सिचुएशन, राइट? सो विद दैट, आई मीन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट place where I want to highlight the importance of having a security product in your organization. However small your bank is, you need to have your security posture right. Now RBI ने ये गाइडलाइंस क्यों निकाली? ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस इसलिए निकाली कि भाई कम से कम ये रूल्स बनेंगे तो हम किसी ना किसी फॉर्म में इनको फॉलो करेंगे. Now my question to you, Paresh ji, as a CISO of an organization, what are the best practices that you follow? आपने हम सबकी concerns सुनी. So what is your answer to these concerns as a CISO? पहले तो मैं मेरी बैंक का थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ.
मेरी बैंक का नाम है वरासो कोऑपरेटिव बैंक सूरत। ऑलमोस्ट 6,200 करोड़ का बिजनेस है। 3,600 करोड़ की डिपॉजिट है और 2,500 करोड़ का एडवांसिस है। हम आईटी में काफ़ी इनोवेटिव है। हमारा ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब एटीएम कार्ड होल्डर है और पर डे मेरा ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब मेरा एटीएम यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अभी सर ने बोला था कि भाई खर्च बहुत ज़्यादा है, खर्च बहुत ज़्यादा है। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप खर्च नहीं कर सकते हो तो मर्ज हो जाओ। आरबीआई भी यही कर रही है कि अगर छोटी बैंक खर्च नहीं कर सकती तो उसको मर्ज होना पड़ेगा, क्योंकि हम कस्टमर के डिपॉजिट के ट्रस्टी है। हम खर्च नहीं करेंगे, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा एंड ऑफ द डे हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अभी हम सबसे ज़्यादा हमारे लिए इश्यू है सीबीएस। अभी जो सीबीएस सॉफ्टवेयर है ना, वो एक ही सीबीएस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ नहीं आ सकती, हमें एपीआई डेवलप करनी पड़ेगी। अभी आरबीआई का जो रिसेंट सर्कुलर आया है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मनी मूल अकाउंट, डॉट का सर्कुलर होगा, आपने सुना होगा, ट्राई का सर्कुलर होगा, अकाउंट वेलोसिटी, कस्टमर के ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, सारी चीज़ एक सीबीएस में नहीं आनी सकती। इसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर वेंडर है, वो भी सर्टन प्राइस हमें देता है कि ये प्राइस है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई भी मेन पावर आएगा 1 लाख लेगा, 1.5 लाख लेगा कॉस्ट, वो तो लेगा। अगर हमें अपने हिसाब से काम करवाना है और हमें आईटी में इनिशिएटिव आगे बढ़ना है तो खर्च तो करना ही पड़ेगा। हमारी बैंक हर साल आई थिंक हर साल 15 से 20 करोड़ प्योर आईटी में एक्सपेंस करती है, क्योंकि अगर हम एक्सपेंस नहीं करेंगे तो हमारे पास जो भी कस्टमर रहेंगे वो ओल्ड एज के रहेंगे। नया सभी बैंकों में भी एक प्रॉब्लम है, कोई भी जो नया कस्टमर आता है ना, वो 25 ईयर से बड़ा कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आता। वो सारे कस्टमर जो भी बड़े कस्टमर जो ऑनलाइन करते हैं वो हमारे पास बहुत कम आते हैं। हमारे पास कस्टमर कब आएंगे? जब हम उसको ऑनलाइन सर्विस ऑफर करेंगे, डोर स्टेप बैंकिंग ऑफर करेंगे। सर की बात सही है कि छोटी बैंकों को खर्च इतना ज़्यादा आईटी का खर्च है, लेकिन छोटी बैंकों का दिक्कत, छोटी और बड़ी बैंकों का दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पूरा एनवायरनमेंट है आईटी में और साइबर में। हमें कर से डरना नहीं चाहिए। अभी अगर आप छोटा सा कोई भी टूल्स लेने जाओ, कोई भी वेंडर है उसका बॉटम आप नहीं निकाल सकते। कोई चीज़ भी एक बैंक में 25 लाख में देते हैं, दूसरी बैंक में 5 लाख में देता है। यहाँ हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा डिनाइड नहीं कर सकते कि हम ये खर्च नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी बैंक अपने सीबीएस सॉफ्टवेयर से सेटिस्फाइड नहीं है। हर एक बैंक को दूसरी बैंक का सीबीएस सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है कि हमारे बैंक में ये नहीं है, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है। अभी हमारी बैंक भी सॉफ्टवेयर माइग्रेशन का सोच रही है, हम इन्फोसिस का सोच रहे हैं, ओरेकल प्लेसक्यूब का सोच रहे हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में हमने कॉमर्शियल निकाला तो मोर देन 45 करोड़ 5 साल का हमें कोटेशन मिला है। और उसके लिए अगर हम मर्सिडीज का गाड़ी लेके तो चलाने के लिए ड्राइवर भी अच्छा होना चाहिए ना। हम आईटी साहब को 15,000 का सैलरी, 20,000 का, 25,000 का सैलरी देके और उसको बोले कि तुम इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर चलाओ, हाउ कैन पॉसिबल? यानी एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमें मार्केट में सस्टेन करना है, हमारे कस्टमर की डिपॉजिट प्रोटेक्ट करना है, ग्रो करना है, तो हु कैन को बैंक को खर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज मर्ज होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sure. No, let Ashish sir has his point of view and then please chime in. This is going in really fantastic conversation, guys. Yeah. जो आपने बताया कि अगर इफ़ वी कांट मैनेज द कॉस्ट, हमको मर्ज हो जाना चाहिए या ये हो जाना चाहिए। लेट मी जस्ट गिव यू द फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग। फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग इसीलिए है क्योंकि हमारे जो कस्टमर है उनको हमारे पे ट्रस्ट है, हमारे बिजनेस पे एज ए बिजनेस एंड एज बिजनेस ओनर्स। अगर मर्ज ही होना होता तो हमारे कस्टमर हमको छोड़ के एसबीआई चले जाते, आईसीआईसी चले जाते, कहीं भी चले जाते, लेकिन 50 साल पुराने कस्टमर हमारे पास आज भी हैं और वो हमारे साथ उतने ही स्ट्रिक्टली खड़े हैं हमारे साथ। Sir, this problem is real. The problem of, having a smaller banks not being able to afford the tech, but the tech challenges are equally real. So what is your take? What is your answer to this situation then? See, ma'am, there are costs associated with every business. Every business has to stand in competition with other businesses. Unfortunately, क्या हुआ है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, मेरे पास एक चार्ट है, आई कुड हैव शेयर्ड विथ यू। अगर अपन टाइप्स ऑफ बैंक्स देखेंगे ना इंडिया में, आई थिंक देयर आर अराउंड 12 to 15 टाइप्स ऑफ बैंक्स इंडिया के अंदर। प्राइवेट बैंक से लेके, शेड्यूल बैंक से लेके, ये है।
मैं तो ये सोचता हूँ कि ये तो हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं। इमेजिन अगर किसी दिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को टोटल फ्रीडम दे दो, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक्स बना दो, ठीक है, तो उसके अंदर हम छोटी बैंक क्या और बड़ी अर्बन बैंक क्या, वी आर ऑल गोइंग टू बी वाइप्ड आउट। उसके अंदर तो उसके अंदर हमको सोचना पड़ेगा किसके साथ मर्ज होना है, हमारी स्टेट बैंक के साथ कि हमारी नेशनल बैंक के साथ मर्ज होना है, ठीक है। तो एनीवेज, सो कॉस्ट इज़ एन एलिमेंट, कॉस्ट इज़ अ फैक्टर, बट एक कॉस्ट को हम जस्टिफाई करके ही आगे बढ़ते हैं हर बैंकिंग इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के अंदर। हम आज CBS भी यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ कि हमारा 1 करोड़ का खर्चा है साल का, सर का सपोज़ के 5 करोड़ का खर्चा है साल का, आपका हो सकता है कि 20 करोड़ का खर्चा हो साल का। इट डिपेंड्स हमारी कैपेसिटी जो है, क्योंकि हमको ये पता है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वी आर एडिंग वैल्यू टू आवर बैंकिंग एज अ बिजनेस, वी आर गेटिंग न्यू कस्टमर्स एवरी डे, एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई दे आर कमिंग टू अस इज़ बिकॉज दे ट्रस्ट अस एज अ बैंक। और जैसा जैसा हो पाएगा, विल गो स्टेप एट अ टाइम। But what is your answer to the security challenges that we are seeing? See, madam, security challenges, I'll tell you another part about AI, for example. AI, everyone like AI, this, AI, that, okay? Do we understand what is the basis of AI as a model? It is still called as a learning model. AI जितना भी सीखता है ना, वो शेयर्ड डेटा से सीख रहा है। जो शेयर्ड डेटा आपने एक्सपोज किया है, उससे वो सीख रहा है। एक छोटी सी एनालॉजी है, चैट जीपीटी, एवरीवन नोज चैट जीपीटी क्या चीज़ है, मेरे ख्याल सबको पता होगा चैट जीपीटी क्या चीज़ है। तो पिछले 1-2 साल से जब से चैट जीपीटी आया था ना मार्केट में, सबसे बड़े यूज़र कौन थे चैट जीपीटी के, पता है आपको? स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। अपने आंसर्स लिखते, क्वेश्चन लिखते थे, आंसर 1 सेकंड में आया, छापा, नेक्स्ट डे पहुंचा दिया, एंड टीचर्स वर सरप्राइज, कहाँ से लाए आंसर्स, अमेजिंग। टीचर्स क्या है, स्कूल्स भी स्मार्ट हो गए, अब स्कूल वाले खुद AI यूज़ कर रहे हैं उनके आंसर चेक करने के लिए, एंड दैट AI कैन एक्चुअली टेल यू वेदर इट्स अ फेक और इट्स अ रियल आंसर, ठीक है। तो ये वही बात होगी ना कि यू आर सिटिंग ऑन अ ब्रांच एंड कटिंग द सेम ब्रांच। दिस इज द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। सो AI इज स्टिल लर्निंग फ्रॉम ऑल द डेटा। जो फ्रेमवर्क की बात मैं आपको स्टार्ट में कही थी, जो RBI ने निकाली है अभी, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने 7 सूत्र बना रखे हैं। 7 सूत्र अगर उसमें देखो, यू नो द वेरी फर्स्ट सूत्र क्या है उसका, The entire framework relies on shared data. क्या आप अपने कस्टमर का डेटा कॉमन पूल के अंदर डालना चाहेंगे, यस या नो? सिंपल इज दैट। आपका कस्टमर रहेगा, भाई कहाँ जा रहा है हमारा डेटा, क्या कर रहे हो उसका आप, क्योंकि ये AI उसी से लर्न करेगा, आपकी हैबिट्स लर्न करेगा, आपकी स्टाइल लर्न करेगा, इट विल लर्न दैट, एंड दैट्स वेयर द साइबर सिक्योरिटी कम्स इन। विल योर साइबर सिक्योरिटी विल बी सो स्मार्ट टू आउटवे जो AI ने लर्न किया है। सो बेसिकली AI ही आपका प्रोटेक्टर है और AI ही आपका डिस्ट्रॉयर रहेगा इस केस में। This is what I would say. Agreed. So I'll invite Tejas ji. You haven't spoken yet. So what is your take? You come from tech. So what is your take on the role of cybersecurity teams or the tech helping the UCBs managing and being complying to these rules of RBI? Thank you. As a बैंक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की ओर से बोलूँ, एज ए IT कंपनी ओनर की ओर से आप दोनों तरफ से बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक बैंक की ओर से मैं बात करूँ तो मैं पिछले 1 साल से 2 बैंक के अंदर बैंक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में हूँ, तो मैंने काफ़ी सी चीज़ें ऑब्जर्व की है कि UCC बैंक के अंदर है ना, साइबर सिक्योरिटी को लेके मेजॉरिटी गुजरात के अंदर तो मैंने ऑब्जर्व किया कुछ कम ही बैंक्स है जिसका खुद का CISO, जैसे परेश भाई है, ऐसे बहुत कम बैंक है जिसके खुद का CISO का टीम हो। बाकी सारे मेजॉरिटी सब बैंक्स है ना, ज़्यादातर उसके सिक्योरिटी ऑडिटर्स के ऊपर डिपेंडेंट्स है, चाहे वो सही बोले गलत बोले, वो जो 25 पेज का ऑडिट रिपोर्ट दे देते उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। बैंक वाले को ये भी नहीं पता कि वो ऑडिटर सही है कि नहीं। आज सर्टिन का सर्टिफिकेट लेके आके कोई लाख रुपया भी लेता है और 25,000 में भी काम कर रहा है। बैंक तो यही देखता है मेरे को 25,000 में करके दे रहा है। आज मैं गारंटी दे रहा हूँ सब लोगों को, भले ही खराब लगे, लेकिन ना बैंक के मैनेजमेंट को पता है ना बैंक के IT पर्सन को पता है कि जो मेरा
फायरवॉल के अंदर कितने पोर्ट्स है उसकी लॉग फाइल रियल टाइम वो मेंटेन भी नहीं कर रहा है। और आप बोल रहे हो कि आरबीआई ये कंप्लाइंस आ रहा है, ये कंप्लाइंस आ रहा है। आधे लोगों को तो ये पता नहीं कि फायरवॉल का पासवर्ड क्या है, वो सीधे वो ऑडिटर को या उसके सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करेगा। ये तो सबसे पहले बैंक के आईटी वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और 20 से 30% अभी भी ऐसे बैंक है जिसने अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस चलाए है, ना बोर्ड के पास अवेयरनेस है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या आरबीआई का एक कंप्लाइंस भी है। परेश भाई शायद मैं रॉन्ग ना हो तो। हम आईटी में एसेट तो बहुत बड़ी बड़ी लेते हैं। सर ने बोला कि भाई बैंक का प्रॉपरली जो भी प्रोडक्ट लेती है, सपोज के कोई बैंक ने फायरवॉल लिया, फायरवॉल में रूल कॉन्फ़िगरेशन, चलो ये नेटवर्क नहीं मिला, रूल डाल दो, कोई चेंज मैनेजमेंट नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई एप्लीकेशन एक्सेस ना हो, रूल डाल दो। हम वीएपीटी और आईएस ऑडिट इसलिए करवाते हैं कि हमें कॉम्प्लाइंस करना है, रियल सेंस में हम नहीं करवाते। हम जिस ऑडिटर के पास से काम करवाते उसको बोलते हैं ये क्लोज करके तेरे को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और कंपटीशन भी इतनी है, ऑडिटर मना नहीं करता, चलो मैं आपको क्लोज करवा देता हूँ। वीएपीटी ऑडिटर ने जितनी भी क्वेरी निकाली है, जितनी भी त्रुटि निकाली है, हम उसको देखते ही नहीं रूट लेवल पे, कौन से पेज से अपडेशन बाकी है। उसका एक दिन उसका आदमी आएगा, वो बोलेगा इतने इतने पेज बाकी है, उसको रीस्कैन करो, ये डालो, ये सिस्टम हटाओ, हो जाएगा। यानी कोई भी अगर हम, चलो सभी बैंक इधर बैठी है, अभी आरबीआई बोलती है कि आपको डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन सी बैंक रियल सेंस में लाइव डीआरडीएल मोर देन 1 वीक चलाती है या 2 दिन चलाती है, कोई नहीं चलाती। सब सॉफ्टवेयर में कोई नहीं चलाती डीआरडीएल। डिजास्टर रिकवरी का प्लान केवल हम पेपर पे रखते हैं। कभी भी काफ़ी कंप्लाइंस तो ऐसे है कि आने के बाद 4-4 महीने के बाद तो टेबल पे पड़े रहते हैं, उसके बाद देखते हैं ये आरबीआई का रह गया, अब ऑडिट आएगा, इसको देख लेते हैं। अभी सर्टिन और सी साइड हर वीक में 3-4 एडवाइजरी देती है। एडवाइजरी बोर्ड में पुटअप होती है, मिनट्स में लिख देते हैं, लेकिन रियल टाइम उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कुछ नहीं। फिशिंग मेल करते हैं, फिशिंग मेल का भी कोई रिकॉर्ड नहीं, फिशिंग मेल किसने ओपन किया, बाहर से कौन से मेल आने चाहिए, कौन से मेल क्लिक होना चाहिए। हम सबको ट्रेनिंग तो देते हैं, लेकिन रियल सेंस में उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता। यानी आरबीआई ने जितने भी 108 जो साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल बोले ना, हम केवल आरबीआई को दूसरी आरबीआई से कन्वेंस करने के लिए हम कॉम्प्लाइंस करते हैं, रियल सेंस में हम कोई कॉम्प्लाइंस नहीं कर रहे हैं। સાહેબ મને એવું લાગે છે કે વાર્તા ખોટી દિશામાં ગઈ। હું એવું કોઈ વાર કહેવા નથી માંગતો કે નાની બેન્કો કોઈ એપ્લાયન્સને કે તમે હજી સીબીએસ ચેન્જ કરી રહ્યા છો, કરવાનું વિચારી રહ્યા છે। અમે લોકોએ ગયા વર્ષે સીબીએસ ચેન્જ કર્યું, કારણ કે અમારે એવું લાગ્યું કે અમારો જે સીબીએસ છે એ અમારે પહોંચી નહીં વળે ને વી હેવ ધ વન ઓફ ધ બેસ્ટ સીબીએસ। ના ના ના, આઈ એમ નોટ પર્સનલ। હવે 67માં હું પર્સનલ નહીં હોય। એટલે આમાં શું થાય છે કે સીબીએસ વાળા શું કરે છે, તમારે ટિકિટ જનરેટ કરવાની, પછી એ નક્કી કરે કે આ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। આપણે નહીં નક્કી કરવાનું, પ્રોબ્લેમ આપણો, પૈસા આપણે ચૂકવીએ, આપણે ટિકિટ જનરેટ કરવાનું કે સાહેબ આ સિસ્ટમમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, પછી એ નક્કી કરે કે આને ટોપ પ્રાયોરિટીમાં લેવાનું કે રેગ્યુલરમાં લેવાનું કે આમાં લેવાનું, 24 કલાક લે કે 12 કલાક લે। મારી આ વિષય છે, હું સાયબર સિક્યુરિટીથી લઈને નાની સર તાલીબ સર તાલીબ સર હવે હું તમને એઝ એ કંપની ઓનર તરીકે વાત કરું। આ આપણે ઇન્ડિયાની મેન્ટાલિટી છે કે હું મેલ નહીં કરું, હું ટિકિટ કમ્પ્લેન નહીં કરું। આજે તમે કોઈ એમએનસી સાથે કામ કરો છો, કમ્પલસરી છે। મને પૂરું કરી લેવા Sir, we 1 મિનિટ મેડમ। એ મર્જરની વાત કરી, સાહેબે કીધું કે લોકો અમારે જોઈને આવે છે। મતલબ સાહેબ ગાંધીજીનો એક સિદ્ધાંત હતો કે સર્વિસ જે હોય ને, છેવાડાનો માણસ જેને કહેવાય ને, સૌથી નાનામાં નાનો માણસને સર્વિસ મળવી જોઈએ। એ સર્વિસ ખાલી કોઓપરેટિવ બેંક જ પૂરી કરી શકે। નો નેશનલાઇઝ બેંક કેન ડુ ધીસ। આઈ ચેલેન્જ। તમે એસબીઆઈમાં જઈને એક સાયકલની લોન લઈને જો કેવી રીતે મળે છે। નાનો માણસ હોય, અમારા ગામનો હોય, અમે ઓળખતા હોય, એના મામાને ઓળખતા હોય, એના કાકાને ઓળખતા હોય, એનો એડવાન્ટેજ કોઓપરેટિવ બેંકને મળે છે। અમે બધું જ સમજીએ છીએ કે ભાઈ લોકોના પૈસા છે, વી આર આ છે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે, અમારે સાચવવાના છે, વી આર ટ્રસ્ટી। પણ જે પ્રોબ્લેમ અમે 25-25 લાખ રૂપિયા આપવા પછી, આ બધા સાહેબો કંપનીના છે એટલે આ લોકો વિરોધ કરશે જ મારો, એમાં કંઈ નવાઈ નથી। ભોગવવાનું અમારે છે। કસ્ટમરને સિસ્ટમ બ્રેકડાઉન થઈ ગઈ, કસ્ટમરને 10 મિનિટ ઊભા રાખો તો જવાબ કોને આપવાનો છે?
હવે એને એમ કે ઓલી ફલાની સીબીએસના અંદર પ્રોબ્લેમ થયેલો છે. સાહેબ અમે લોકો બી ક્લાઉડમાં છે કેલાવાલા સાહેબ, અમે નાના માણસ છે પણ અમે બી ક્લાઉડમાં જ છે ના. એટલે એ સોલ્યુશન નથી કે સાહેબ જંગલમાં વાઘ હોય તો સસલું બી જીવી શકે, એ ધ્યાન રાખવાનું. So, see, this is all real problem. You know what we are discussing, the reason why you all are sitting here, the challenges that you all are facing, and the compliances that we have been receiving, and the threats, everything is real. Let us first acknowledge it. The acknowledgement is very important. Now, since we are sitting in this discussion and you guys are esteemed panelists having so many years of experience, I want each one of you to now switch gears and tell me what is the answer. आज इन जो प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस करी, जो प्रॉब्लम्स आज हम एक्नॉलेज कर रहे हैं एज अ टीम हियर, एज अ ग्रुप हियर, इसका आंसर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे आंसर 2 स्टेप में चाहिए प्लीज़. 1, आई वॉन्ट एन आंसर कि हमारी एक्सपेक्टेशन एज अ बैंक टेक टीम से क्या है, हमारी डिजिटल टेक्निकल टीम, फिनटेक टीम, हमारी सिक्योरिटी टीम से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है. दूसरा, एज अ बैंक हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है. एंड एज अ सीसो आई वुड आस्क यू कि what is your expectations from the bank? So since you have held the mic, Paresh ji, I'll start with you. સાહેબે કીધું કે આપણે રૂટ લેવલના કસ્ટમર આપણી સાથે જોડાયેલા કસ્ટમર આપણી પાસે આવે છે, પણ સાહેબ આવે છે વાત સાચી છે, પણ ધીમે ધીમે એની સંખ્યા પણ ઓછી થતી જાય છે. આઈસીઆઈસી બેંક, એચડીએફસી કે જે પ્રાઇવેટ સેક્ટરની બેંકો છે, મિનિમમ બેલેન્સ 25,000 30,000 કરે છે. શા માટે કરે છે? આપણે 1,000માં ખાતું ખોલીએ છીએ, 5,000માં ખાતું ખોલીએ, એટલે આપણી પાસે ક્વોલિટી કસ્ટમર નથી આવવાના. અને તમારી વાત સાચી, હજુ પણ રિપીટ કરું છું કે રૂટ લેવલના કસ્ટમર, આપણા લોકલ કસ્ટમર આપણી પાસે આવશે, પણ એ ક્યાં સુધી આપણી સાથે જોડાયેલા રહેશે? એને આપણે જોડેલા રાખવા હશે તો આપણે ટેકનોલોજીમાં ગ્રો કરવો પડશે, નવી નવી સર્વિસ આપવું પડશે. પછી એક સમય એવો આવશે, આપણે નોટબંધીમાં બધાને અનુભવી છે, સારામાં સારો જે આપણો કસ્ટમર હતો ડિમોનેટાઇઝમાં, જો આપણે એના પૈસા 1,000 રૂપિયા પણ રોકડા નથી આપ્યા, કે એને આપણે નોટ એક્સચેન્જ નથી કરી આપી, કે એની નોટ આપણે ડિપોઝિટ નથી કરી આપી, તો બેંકના વિરોધમાં સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે. એટલે જ્યાં સુધી તમે કસ્ટમરને સારી સર્વિસ આપશો ત્યાં સુધી તમારી સાથે જોડાયેલા રહેશે. પણ તમે જો ટેકનોલોજી એડપ્ટ નહીં કરશો તો ધીમે ધીમે તમારી સાથે જોડાયેલા કસ્ટમરોની સંખ્યા દિવસે દિવસે ઘટતી જશે. ધેટ્સ ઓલ. I'm going to ask Sujit ji 2 answers. As a tech company, what is the solution to the problems that we have discussed? And second, what is your request from the banks? एज ए फिनटेक मैं यही बोलूँगा कि मैं भी फिनटेक हूँ, बहुत सारे फिनटेक कंपनियाँ यहाँ पे आई हैं, तो वो विन विन के लिए काम करें जैसे हम लोग करते हैं. अगर कोई कोऑपरेटिव में कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन मेक ए सोल्यूशन विद द बोथ ऑफ पार्टी. अगर बैंक है तो बैंक की जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से सोल्यूशन डिजाइन करें एंड दे कैन गिव टू इट. वो चीज़ होगी. दूसरी चीज़ होगी कि बैंक के लिए, बैंक भी फिनटेक कंपनियों को जब तक अपना प्रॉब्लम या स्टेटमेंट नहीं देंगे, जैसे परेश सर ने बोला कि सीबीएस इतने सारे मार्केट में इतने सारे वेंडर हैं पर कोई भी सीबीएस परफेक्ट नहीं है. तो मेरा मानना वही है, मैंने 2-3 इवेंट में भी बोला है ये चीज़ें, कि अगर आपको लगता है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी सीबीएस की एग्जांपल लेते, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि सीबीएस पे ये इन्हांसमेंट होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, तो यू हैव शेयर विथ योर वेंडर. अगर वो नहीं करते हैं तो मैंने ओपनली बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, cooperative@synctech.com पे आप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी विदिन 7 days कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो चीज़ है कि इंटरेक्शन होना चाहिए. अगर हम लोग इकोसिस्टम में हैं, फिनटेक इकोसिस्टम का पार्ट है, बैंक भी पार्ट है, तो वी कैन वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर. What is your take? सबसे पहले तो Solution, हाँ, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है अभी. प्रॉब्लम लेकिन जेन्युइन है. सबसे नहीं, पहले I'm not discounting any of the problems. I'm just trying to steer it in the solution mode, क्योंकि हम प्रॉब्लम के बात करेंगे तो आज हम रात तक बात कर सकते हैं. But let's talk solutions. सबसे पहले तो सारे बैंक्स को अपने आईटी टीम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो भी डे बाय डे अपडेशंस आ रहे हैं उसको कॉस्ट के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से उसको हर चीज़, जैसे
एक आइटम 5 रुपये में भी मिलती है और 50 रुपये में मिलती है, उसको एक कंपैरिजन करके उसको अपडेट तो करना ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं करो तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज़, उसके सामने आप अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो, वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, लोन्स, काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेस बढ़ाने की जिसके ऊपर भी फोकस नहीं है, वो भी करने की ज़रूरत है। और पैसा ही नहीं आएगा तो आप खर्चा कितना करोगे, उसकी भी एक लिमिटेशंस है। But what is your role as a software company? I mean, as a tech representative, in order to help these banks solve better? What is your role? I mean, expectations from bank is fine, but what is your role as a tech representative? देखो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हम पर्सनली मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हम विदाउट डेटा बैंक का यूजिंग आउटसाइड ऑफ डेटा बैंक के बाहर यूज़ किए बिना ही उनके ही डेटा के अंदर हम लोगों ने काफ़ी प्रोडक्ट हम लोग अगले महीने GFF ग्लोबल फिनटेक में लॉन्च कर रहे हैं कि बैंक का डेटा ही AI के अंदर उसके थ्रू यूज़ हो जाए और उसका मैन पावर का रिसोर्स उसके वहाँ से वो लोग हटा सके और उसको कहीं और यूटिलाइज कर सके। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको धीरे धीरे हम लोग AI के ऊपर लेके जा रहे हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर भी धीरे धीरे इसके अंदर आगे आ जाएगा। बट मेन चैलेंज कि अपनी टीम को धीरे धीरे इम्प्रूव करना, और उनकी भी एक लिमिटेशन से, एक हर पर्सन की एक लिमिटेशंस होती है। So if I'm hearing it correctly, so this is basically a partnership between the bank and the tech, where tech educates the bank and the bank enables the tech to help them be compliant. Is it a fair statement? Do you agree? Okay, Talib sir, what is your take? What is your question? Solution to your problems. सर के मुंह से जवाब निकालेंगे। सॉल्यूशन ऐसा ही है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो RBI हमको पेनल्टी करती है और वो प्रॉब्लम के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हम CBSA या जो जी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको भी पेनलाइज करो, उसको भी पार्टी बनाओ, मालूम पड़ेगा। जो लोग पैसे ले जाते हैं वो उनको जो जवाबदारी ही नहीं है। वी आर आंसरेबल टू ऑल। So accountability is one. अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो लोग आज कुछ भी बैंक में प्रॉब्लम हुआ, व्हाई इट्स हैपन, कुछ मैं अभी बात करूं, हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च को थी, 1 अप्रैल को हमारी बैलेंस शीट चेंज हो गई ड्यू टू सम CBS प्रॉब्लम। तो अब यही अगर बैलेंस शीट में RBI में भेज दूं तो RBI क्या करेंगे, मुझे घर पे भेज देगी, तो उसका जवाबदारी कौन है? आई एम नॉट आंसरेबल टू बैलेंस शीट, मैं नहीं बनाता हूँ, सिस्टम बनाती है, और सिस्टम में उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम था तो दे आर नॉट आंसरेबल, वी आर ऑल्सो आंसरेबल टू एवरीबडी। आप भी मुझे ही पूछ रही हो, कंपनी वाले को पूछो। देखिए, मुझे दो फॉर्म में आंसर चाहिए। एक, एज अ बैंक, what is your responsibility towards the tech? What is it that you want from tech? So you said you want accountability from the tech. Yes. What is second, as a bank, what can you give back to the tech so that tech can help you be compliant with RBI? वी पे हम पैसे देते हैं सर, पैसे के Service अलावा के क्या लिए। दोगे आप? डेटा। सर और पैसा उसके सामने देते हैं सर्विस तो मांग रहे सारी हैं। जिम्मेदारी We तो don't IT ask कंपनी की anything नहीं extra. होगी ना सर। हाँ? सारी कंपनी सारा चीज़ IT कंपनी करके देगी। बोर्ड बिठाया है तो बोर्ड की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। नहीं, बोर्ड हमारी जिम्मेदारी है, हमको अच्छी CBS हमने सिलेक्ट किया, हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं वो पैसे हम आपको दे रहे हैं। बार्गेनिंग एक ही बार होती है, अभी मैंने बार्गेनिंग किया, बाद में मालूम पड़ा कि आप बाजू वाले की बैंक में मेरे से 2 लाख सस्ते में चले गए, अब उसका क्या करने। वो तो दिवाली के टाइम भी सेल्स निकलता है ना, सेल की ऑफर। मतलब ये चलो, परेश ये भाई, कोई- what is कोई your answer to the- टेबल ही नहीं है कि भाई इनका इतना रुपया होगा, कि ये कोई है ही नहीं। सर अभी ये पर्सनल हो रहा है। एक मिनट सर, तालिब सर, इफ यू डोंट माइंड, बट मैं पर्सनली बताना चाहूँगा, हर IT कंपनी की बहुत सारी चैलेंजेस है। आज IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हाई पे स्केल इतना हाई हो गया है कि वो जो ये रेट में CBS या जो भी सर्विसेज बैंक को जो रेट में दे रहे हैं ना, वो इतना चीप रेट में देना बहुत मुश्किल है। Agree. आज एक
फ्रेशर भी जॉब स्टार्ट करता है ना तो 3-4 लाख से नीचे काम नहीं करता है वो। आप अपनी बैंक में ही आप लोग भी खुद सोच रहे हो कि बता रहे कि 1 लाख रुपया हमें देना है, ये तो फ्रेशर भी 4-4 लाख मांग रहे हैं, तो उनका भी एक कॉस्ट स्टैंडर्ड है। परेश जी, व्हाट इज योर टेक? सर ने तो ऐसा बोला कि भाई सोसाइटी मुझे 2 स्टेप में आंसर चाहिए। वन, व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक इन सॉल्विंग दैट सोल्यूशन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेक इन हेल्पिंग द बैंक कंप्लाई विद द आरबीआई? पहले तो कंप्लाई बारे में पहले तो बैंक को पता होना चाहिए क्या कंप्लाई करना है, आरबीआई की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बहुत सी बैंक को तो वही पता नहीं कि उसको क्या कंप्लाई करना है। उस बैंक को पेनल्टी लगी, अंदर से खुश होते, उस बैंक को पेनल्टी लगी, हमें नहीं लगी। सही में ऐसा ही होता है, उस पर फोकस करते, लेकिन कितने कंप्लाइंस हमें करने हैं, हमारे पास कोई चेकलिस्ट ही नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, सर ने बोला कि भाई कंप्लाइंस करने के लिए मैन पावर हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। मैन पावर तभी आएगा जब हम एक्सपर्ट मैन पावर लाएंगे। अगेन उसमें बाद में कॉस्ट आएगा। बैंक प्रॉफिट कम करेगी, नहीं चलेगा। लेकिन कंप्लाइंस करने के लिए रेगुलेशन कंप्लाइंस जितने भी है, हम बोलते हैं पेनल्टी हुई। पेनल्टी आरबीआई जो भी पेनल्टी करती है, मैं आरबीआई की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन आरबीआई हमें सुनने का भी मौका, हम बोलते हैं, हमारा भी स्टेटमेंट लेती है, हमें भी मौका देती है। सो रेगुलेटरी के पास कुछ पावर तो होना चाहिए ना। अगर हम गलत करते हैं तो पेनल्टी आरबीआई ऑब्वियसली करेगी। हम उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने गुड फेथ में किया था। सभी ऐसा गुड फेथ में करेगा कि तो कस्टमर की डिपॉजिट का और पूरा बैंकिंग एनवायरनमेंट और जो इंडिया में बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग इंडिया से वर्ल्ड में नाम है, वो नहीं रहेगा। यानी हमें बैंक शुड बी कॉम्प्लाइंस ऑल द पैरामीटर गिवन बाय द आरबीआई टाइम टू टाइम एंड बिफोर टाइम लाइन। थैंक यू सर। व्हाट इज योर टेक, राकेश सर? जैसे तालिब सर, આપણે જૂના જમાનામાં કેવું હતું કે એમ્બેસેડર હતી, એમ્બેસેડર ચલાવવા માટે પેલો ફેંટાવાળો ડ્રાઈવર હતો। હવે અત્યારે તમે મર્સિડીઝ બેન્ડ લીધી છે। નો નો વોટ આઈ મીન ટુ સે કે એટલે હું નો 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 નોટ એટ ઓલ, નોટ એટ ઓલ, નોટ એટ ઓલ। અમારી બેંકોને બહુ મને યાદ નથી કે છેલ્લી અમારા આરબીઆઈ ની પેનલ્ટી ક્યારે લાગેલી। પેનલ્ટીની વાત જ નથી કરતો, આઈ મીન ટુ સે ઇન્ફોર્મેશન વી આર A+ બેંક, પણ જે દરેક બેંકનો પ્રોબ્લેમ છે એની મેં ચર્ચા કરી રહ્યો છું। હા હા, હું એના ઉપર જ આવું છું સાહેબ। સાહેબ, આપણે હમણાં જ વાત થઈ, આ લોક આ સાહેબે કીધું, તમે કીધું, પહેલી જે વાત આવી મર્જરની, એ તો ના ના ના, એને ભૂલી જ જવાનું। એને સાઈડમાં રાખો। હમણાં આ સાહેબે કીધું, એક મિનિટ। ના સાહેબ, મારી વાત સાંભળી લો, થોડુંક કદાચ મને બોલતા નથી આવડતું। ના 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 ના, નોટ પર્સનલી, હું બધા બેંકરોના વતી વાત કરી રહ્યો છું કે નાની બેંકોના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, કમ્પ્લાયન્સીસથી લઈને આરટીજીએસ બધું તમે જે કરો છો એ જ અમે કરીએ છીએ। તમારે જે રિયલ ટાઈમ લાગે છે એ જ ટાઈમ અમારે લાગે છે। અમારે ત્યાં હજી સુધી કોઈ વાર એવા પ્રોબ્લેમ બી નથી થયા। કાં તો અમારામાં હોશિયારી છે કે અમારા પર ભગવાનની મહેરબાની છે, એ બીજો વિષય છે, પણ હજી સુધી એવા કોઈ ફ્રોડ થયા નથી ને કરવું જ જોઈએ। આઈ એગ્રી કે એઆઈ આપણી આંખ છે, डाटा एनालिस्टिक આપણું દિમાગ છે, Sir, let's કે keep કમ્પ્લાયન્સ AI on the આપણી side. મર્યાદા છે। આ બધું વસ્તુ હું બી સમજુ જ છું। I just want to acknowledge कि there is threat, there are attacks that will happen no matter if we apply a security product or not, if we comply to practices or not. I can assure you the rate at which the attacks are happening will continue to happen. Now, the acknowledgement that I want all of us to have is this is reality. The tech is going. How do we want to solve it? How do we want to partner it? Come together, educate ourselves, come all the way from using a computer to using a smartphone. आज से 10 साल पहले तक स्मार्टफोन हमें किसी को नहीं आता था, हम सब ने स्मार्टफोन सीखा। So that's the ask. With the growing need, हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। जब तक हम सीखेंगे नहीं, एंड एज परेश सेड, अगर हमें पता ही नहीं है हमें किस चीज़ के को कंप्लाई करना है, तो हम आगे जाके अप्लाई क्या करेंगे? सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द टेक कंपनीज। आई रिप्रेजेंट टेक, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ ऑन द बैंक एंड योर सेल्फ, वेर वी पार्टनर and we educate each other what is it that we need in order to keep you safe. So Sir Asif sir, it is your take, and Rakesh sir, you were saying something. I was saying that
सभी बैंकों को अपना जो आईटी टीम है उसको मजबूत करना पड़ेगा, बिकॉज आईटी इज द बैकबोन ऑफ एनी बैंक। तो वो अगर ठीक रहेगा तो उस हिसाब से काम करेंगे, तो सॉक के अलर्ट देखने पड़ेंगे, सभी अलर्ट वगैरह जो भी है गाइडलाइन देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से काम करेंगे। तो आई होप कि देयर विल बी लेस चांसेस फॉर द पेनल्टी एंड यू कैन इम्प्रूव योर सेटअप। Agreed. Asif sir, what is your take? मेरा एक्चुअली डुअल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँगा यहाँ पे। फर्स्ट पर्सपेक्टिव इसलिए मेरा बैकग्राउंड जो है आईटी का है, 30 years in IT industry and only 2 to 3 years in banking now as management. Let's understand the difference between these two things. There is no difference. ये हमेशा पैरेलल नहीं चलते, मतलब हैंड इन हैंड चलेंगे हर बिजनेस के अंदर। IT is a functional part of a business. It's a functional part of a business. Management ऐसे IT की तरह दूसरे कई functional parts को साथ में लेके एक positive business grow करता है। This is what management will do. हमारे केस में क्या है cooperative banks के अंदर, that we have a super user on top of us. IT वाले समझेंगे what is the super user, okay, which is the RBI. हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे पास कंप्लायंसेस होती हैं जो कि हमको फॉलो करनी है। आइडियली टेक्नोलॉजी का कोई स्टॉपेज नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। देयर विल कम ए टाइम, हो सकता है बैंक ही ना हो, एक एंटिटी कहीं पे बैठी होगी, आपके स्क्रीन पे आप फोन पे कहोगे आई वांट ए लोन ट्रांसफर टू दिस 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 इज माय बैलेंस शीट, इट विल असेस एंड विद इन 5 minutes आंसर इज यस और नो। यस हो गया तो लोन डिस्पर्स, नो हो गया तो घर पे बैठो आप, डिजिटल करेंसी आ जाएगी। व्हाट विल यू डू देन? इट माइट हैपन, इट कैन हैपन। कई फ्यूचर मूवीज आई हैं, उसके अंदर देखा होगा आपने, दीज आर कॉमन थिंग्स नाउअडेज। And it is happening. It is happening, it is happening. Digital currency and all this thing, ठीक है? Let's not forget the most crucial part over here. This business relies on the trust of the customer to us as a business. हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री, जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में पहली बार आया था ना, तो मेरे दोस्त सब मजाक करते थे, क्या तुम्हारा बिजनेस ऐसा है कि तुम दूसरों के पैसों पे जीते हो, तुम्हारा पैसा क्या है, तो पब्लिक का पैसा है, बिल्कुल सरकार की तरह है कि पब्लिक के पैसे की तरह हमारा पैसा है, तुम उस पर ऐश कर रहे हो, अपनी बिजनेस चला रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, हमारा बिजनेस है तुम्हारे पैसे को सेफ रखना। दिस इज आवर कोर बिजनेस। हमारा बिजनेस है टू मेक डिसीजंस विच विल नॉट डीवैल्यू योर फाइनेंसेस विद अस, बट इट विल इंक्रीज द वैल्यू। FD रेट्स में चेंज करना, कि सेविंग में करना, वी आर इंक्रीजिंग योर वैल्यू ऑफ योर मनी। दिस इज आवर बिजनेस। कल को आपको जरूरत पड़ेगी, आप हमारे पास आओगे, हम आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज यू आर आवर कस्टमर। Anyways, coming back to the IT or AI and all this, AI will keep on growing. AI is in a very early stage. It's a slow adaptation, time लगेगा इसको। और as a management, जैसे तालिब सर ने कहा कि हमारा रोल क्या है, we are observing things from the top. हमको बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली जज करके चलना पड़ता है। हमारा एक रॉन्ग डिसीजन, हमारा एक ऑकवर्ड डिसीजन है, एक गलत डिसीजन कैन अफेक्ट द एंटायर बिजनेस एंड एंटायर सेविंग्स ऑफ ए पर्सन। दैट्स वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी जज एंड हाउ वी जज थिंग्स। तो IT, यस, एज IT फॉर्मर IT, और आप लोग करंट IT हैं, यस, यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, बट रिमेंबर we also have a bigger responsibility to take you hand in hand, our customer hand in hand, and our entire business, our employees, and keep them together safe and sound for the future. This is what I see for the future of any day. आज का AI है, हो सकता है कल कोई BI आ जाए, कल कोई CI आ जाए, कल DI आ जाए. We don't know these things, okay? But this is what management does, and this is the weight on our shoulders that we have to carry forward. और हम लोग ये करते हैं without any remuneration. As directors, we don't get paid for it. We are doing it as a social service to take care of our business and our customers. That's what I would say. Thank you so much, sir. Thank you so much for summarizing it. So, is it fair to say that data is the new oil? AI is the engine for sure, but cyber security is the brake in order for us to save us from getting crashed. Will it be a fair statement to say?
With that, I want to say thank you so much. This was an absolutely passionate conversation. Coming from the product team, coming from the tech team, there is so much learning from these real examples which help us as tech companies to learn about the guidelines, to learn about the challenges that you are seeing, and help you use kind of products which will make your life easier. So thank you so much, everyone. You have been a great audience, and thank you to the panelists. Thank you.